I think in last class, last topic was double fertilization. Last topic was human reproduction. Sexual reproduction. Human shows sexual dimorphism. It means male and female. And for sexual reproduction, fusion of male and female gamete. Fusion of male and female gametes. It means male and female gametes should be produced, and production of male and female gamete occurs in primary sex organs. In case of male, the reproductive system made up of the testes, then duct system, external genitalia, and the associated glands. Testes, in case of male, and in female, reproductive system made up of ovary, fallopian tubes, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia, along with mammary gland, which is used to nourish the young ones after birth. First, male reproductive system. But these reproductive systems becomes active only after puberty. What is puberty? Age of sexual maturity is called puberty. During puberty, some changes occurs in both male and female body. In male body, these changes are voice box get enlarged, sound becomes low pitched, broadening of shoulders, development of muscles, and development of reproductive system या reproductive organs. First, change occurs during puberty in male. कौन कौन से चेंजेस हैं? First, voice box get enlarged. Voice box is also known as larynx. Larynx become enlarged. That's why the voice becomes
low pitched. What is the difference between low pitched and high pitched? Frequency. But how can we observe? Frequency तो नापने नहीं जाते ना. Okay. Female's voice remains unchanged, but male it becomes changed. आवाज बड़ी भारी हो जाती है, देर तक रहती है, दूर तक सुनाई देती है. फीमेल की आवाज हाई पिच्ड होती है, काफी शार्प होती है, तेज आवाज होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, दूर तक नहीं जाती. यही कारण है भगवान विष्णु को देखा आप लोगों ने ना, उनका ये बहुत बड़ा हिस्सा बनाया जाता है, बिल्कुल शंख के आकार का, क्योंकि जितना बड़ा होगा ऊपर से आकाशवाणी करेंगे तो नीचे तक सुनाई देगा. कभी फोटो में ऑब्जर्व किया है आपने? ये फोटो तो क्लियर नहीं है. ओके. सेकेंड, मस्कुलर डेवलपमेंट. थर्ड, फेशियल हेयर्स. फेशियल हेयर आते हैं मेल्स में. beard, mustache, that are the facial hairs that also indicates the maturity. And next one is development of reproductive organs. Development of reproductive organs. Now, male reproductive system parts or organs. First, testis. Second part is duct system. Duct system. Third part is duct system and then अभी बताया था हमने, yes, even external genitalia and associated glands or accessory glands. These glands, first is testis. Primary male sex organ. Why it is known as primary? Okay. Organs in which gamete is produced is known as primary organs, either in male or in female. In case of male it is testis, and in case of female it is ovary. Where is ovary situated? Testis situated? Case of human beings, testis is extra abdominal. Extra abdominal, it means it is outside the abdominal cavity. But how it comes out? Because before birth it remains inside the abdominal cavity. It comes out with the help of a tube that is known as inguinal canal. That is known as inguinal canal. And I think may or may not be, you have listened about the inguinal hernia. Disease inguinal hernia. Because after some times, inguinal canal get filled with tissue and muscles, hence testis can't move upward. ऊपर से नीचे तो आता है,
but after some times inguinal canal get filled and testis can't move upside. But the position of inguinal canal is in front of the intestinal loop. इंटेस्टाइनल लूप के ठीक सामने होती है, जिसके कारण जब भी प्रेशर अधिक होती है तो इंटेस्टाइनल लूप ट्राई टू डैमेज द सेल्स इन इंगुइनल कैनाल, और जैसे जैसे इंगुइनल कैनाल की सेल्स डैमेज होती है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन goes inside the inguinal canal that cause severe pain and swelling. That condition is known as inguinal hernia. Clear? अगर हो जाता है तो two options, either operate, अब दो ऑप्शन होते हैं, एक ओपन सर्जरी होती है, पहले की तरह ट्रेडिशनल कट and make a stitch to prevent the entry of intestinal loop, और दूसरी होती है मेश टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें उसके अंदर स्टिच की जगह एक मेश जाली डाल दी जाती है, उस जाली के कारण इंटेस्टाइन नीचे नहीं आ पाती, जाली उस जगह को भर देती है, अगर जगह भर गई तो इंटेस्टाइन अपने आप नीचे नहीं आएगा, माना जाता है इट्स ए परमानेंट टेक्नोलॉजी, बिकॉज स्टिच में मे बी this disease appears again, but in case of mesh technology it's not possible. Extra abdominal, situated in a skin pouch called a scrotum. This is the inguinal canal through which testis comes out, and this is the scrotum. Skin pouch, testis, अगर ये fill हो जाती हैं through this testis, extra abdominal, क्या बेनिफिट है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने का? यस, ओके, इट प्रोवाइड 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, विच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस, दैट इज ए स्पर्म फॉर्मेशन. ओके, गुड. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल less temperature than body temperature, which is essential for sperm formation, and the process of sperm formation is called spermatogenesis. Spermatogenesis, where sperm forms inside the testis, but testis have another structural and functional unit that is called seminiferous tubules. Structural and functional unit of testis is seminiferous tubules. In which male gamete, sperm produced. अगर हम क्रॉस सेक्शन काटें
सपोज सेक्शनल व्यू हम देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारी राउंड राउंड सी स्ट्रक्चर दिखती हैं. दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इंटरनली इट इज लाइंड बाय germinal epithelium which divides to give rise sperms, seminiferous tubules, and in between these seminiferous tubules there is another group of cells that's known as Leydig cells. Leydig cells or interstitial cells. These cells secretes male hormone testosterone. Leydig cells secretes testosterone hormone responsible for development of secondary male character. जो हमने प्यूबर्टी में चेंज देखे थे, दैट आर द सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स, जिसके आधार पे हम मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एंड इट अकर्स ड्यू टू दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. रियली यस, ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में गैप जो है ना, देखिए दिस इज वन ट्यूब्यूल्स, दिस इज अनदर, and in between these tubules these are the Leydig cells or interstitial cells. Second part is duct system. So male gamete, any gamete in case of human beings, either male or female, is produced by which type of cell division? Meiosis. Why meiosis? Why not mitosis? Yes, because gametes have half number of chromosome or single set of chromosome, that's called haploid. Single set को हम क्या बोलते हैं? Haploid. और two sets को diploid. अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों से haploid आएंगे, then in case of zygote the haploidy will be diploid. टू सेट्स हो जाएंगे, जो कि नॉर्मल नंबर है 46. हमारी बॉडी यस नहीं आया. ओके, दिस इज द मेल गैमेट. ओके, 23 क्रोमोसोम. फीमेल गैमेट 23 क्रोमोसोम, and whenever both fuse or unite, the cell formed will be zygote. First cell form is zygote, which forms after the fusion of male and female gamete. And when 223 chromosomes will combined, number of chromosomes will be 46. That is diploid. ठीक है? And 23 is haploid. अगर नहीं होता इन केस तो क्या होता? अगर मायोसिस डिवीजन नहीं होता तो डिप्लॉयड सेल ही फ्यूज होते, और डिप्लॉयड फ्यूज होते तो क्या हो जाता? टेट्राप्लॉयड 4 हो जाते ना. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल 92, और अगली बार में 184. ऐसे तो बढ़ते चले जाते, क्या हो जाता? डोंट नो. ओके, मे आई गिव वन एग्जांपल. थर्टी 36 वीक के पहले चाइल्ड की डेवलपमेंट होती नहीं. इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स एन वन एग्जाम्पल. मैं प्लांट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, एनिमल में पॉसिबल नहीं है. मैं अब पहले भी बता चुका हूं, आपने नाम सुना होगा आम्रपाली मैंगो. मैंगो नॉर्मली
250 grams के होते हैं on an average basis. But in case of Amrapali, number of chromosomes has been increased. और इसकी weight कितनी हो गई है? More than 800 to 1 kg. It means its weight increased by 3 to 4 times. अगर हमारे क्रोमोसोम बढ़ जाए और हमारी हाइट बढ़ जाए तो what will happen? Ravan, Kumbhakaran and Meghnad will come. That will create a problem for society. Even हम जो गेहूं खाते हैं that is hexaploidy. तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है इसकी ना, मतलब वजन बढ़ गया. तो इंसान का वजन बढ़ जाए तो क्या होगा? 100 बीमारियां हो जाएंगी. इसलिए रहने ही देते हैं, इंसान का वजन नहीं बढ़ाते हैं. बढ़ाना चाहिए. क्या होगा? रावण कुंभकर्ण ही आएंगे ना, देख लेंगे उसके बाद. लेकिन कहीं रावण ने मरने से इनकार कर दिया तो फिर राम को बुलाना पड़ेगा. और राम इस जमाने में कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे ना, आ भी सकते हैं. बट वी आर साइंस स्टूडेंट, वी कांट बिलीव ना. Okay. But there is some supernatural power, either in one or other form, always exist on this planet. चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास? डक्ट सिस्टम. It includes epididymis, of course, vas deferens, urethra, reti testis and vasa efferentia. Reti testis and vasa efferentia, बट वो हम 10th में नहीं कंसीडर करते. 10th में हम दो ही लेते हैं. क्या? एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस. वास डिफरेंस, इनका काम क्या होता है? यस, ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ male gamete from testis to outside. Third one is external genitalia, that is urethra. इसमें क्या होती है? यूरेथ्रा वर्क एज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ मेल गैमेट एंड यूरिन. कॉमन पैसेज for both urine and sperm, because they have two different openings and only one opening can open for a time. Hence, transportation of both at a time is not possible. Next is associated glands. Glands 3. Seminal, vesicle. Second one is prostate. And third one is
bulbourethral or Cowper's gland. Bulbourethral glands. Secretions of these three glands collectively forms seminal plasma. Protect a sperm from acidity of urethra, bulbourethral gland due to urine. Provide medium for a sperm to swim. And third one is provide nutrition. That is energy source for a sperm to swim. Sperms have mitochondria, and mitochondria provide energy by respiration. But for that, energy source should be provided, and that energy source is fructose. What is fructose? Fruit sugar that provide energy for swimming to a sperm. And another thing, it have a special chemical that is known as prostaglandin that helps in reverse peristalsis, that helps in movement of a sperm upward. Now next one is, ये तो हमारा खत्म हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Female reproductive system made up of ovary, oviduct, uterus, external genitalia. एक चीज छूट गया मेरा, चेंजेज अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. पहले लिख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं. Occurs in female body during puberty. First changes: low pitched, high pitched, voice remains high pitched. Second,
Development of mammary gland. Third, yeah. Okay. It means initiation of reproductive cycle and development of reproductive organs. Development of reproductive organs and initiation of or beginning of reproductive cycle. Next, first जो हम पढ़ रहे हैं organ, that is ovary. One pair, one at each side of abdominal cavity. It's situated on dorsal body along with dorsal body wall. हमारी बॉडी के दो हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल. डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच होती है with the help of mesothelium, and near to ovary there is a finger like projections that's called fimbriae. Fimbriae which receives ovum whenever it releases from the ovary. Oviduct or fallopian tube. Suppose ओवरी के ठीक पास में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. This is fimbriae, and this is the ampulla, swollen part, and this part is known as infundibulum. Whenever ovum released from the ovary, it is received by fimbriae, and that send them inside the oviduct. Oviduct have cilia that beats inward to move the ovum inside, and at the junction of ampulla, and this part is known as isthmus. At the junction of ampulla isthmus, male and female gamete fuse. That process is known as fertilization. It means fertilization occurs at ampulla isthmus junction.
This part is uterus. Two, one left and one right. One on each side. ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यूटेरस. दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब होगी और दोनों फैलोपियन ट्यूब के कैविटी जब आपस में मिलती है दैट फॉर्म्स द यूटेरस. Fertilization occurs in fallopian tube at ampulla isthmus junction, या कई बार केवल फैलोपियन ट्यूब ही कह देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है. अगर ऑप्शन एम्पुला इस्थमस जंक्शन है दैट्स ओके, एम्पुला है तो भी ओके, फैलोपियन ट्यूब है तो भी ओके, बिकॉज आई थिंक इन क्लास 10th ओनली फैलोपियन ट्यूब इज मेंशन्ड. एम्पुला इस्थमस जंक्शन, फैलोपियन ट्यूब. देन third part is uterus, site of embryo development. हमारे बॉडी में एम्ब्रियो डेवलपमेंट कितने दिन लगते हैं? 36 वीक. गेस्टेशन पीरियड, जितने दिन में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, आफ्टर कंप्लीट मैच्योरिटी इट कम्स आउट, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इट रिमेन्स इनसाइड द यूटेरस. और जिस पूरे पीरियड को फ्रॉम इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन टू फाइनल एक्सपल्सन दैट इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड, एंड इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स gestation period is about 9 months or 36 week. अच्छा, हमारी डेवलपमेंट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि लाइफ शुरुआत तो एक सेल से हुई थी, और एक सेल कितना छोटा दिखता भी नहीं दिखता. और एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारी लेंथ क्या होती है? 50 सेंटीमीटर. और इसमें भी मैक्सिमम ग्रोथ जो बच्चे की होती है इन लास्ट 5 months, एंड इसमें भी हमारी पूरी बॉडी एक सेल डिवाइड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियो, zygote divides to increase the number of cells. During this division, size not increase, only number of cells increase in size is very less.
एंड सच डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज डिवीजन. ऐसे डिवीजन को क्या बोलते हैं? क्लीवेज डिवीजन. बिकॉज ग्रोथ इज नेग्लिजिबल बट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज. नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन. माइटोसिस ही क्यों? It forms equal pair of, या remains, number of chromosomes remains similar to the parent cell. क्योंकि अगर यहाँ फिर आधी हो गई, गैमिट बनते समय फिर आधी होगी, पॉसिबल ही नहीं होगा. इसलिए और उसके बाद ये सेल्स 3 लेयर में अरेंज हो जाती हैं. 3 लेयर समझते हैं ना? आउटर, इनर एंड मिडल. एंड फ्रॉम दीज 3 लेयर ऑफ सेल्स आवर कंप्लीट बॉडी डेवलप्स. और हमारी बॉडी का सबसे पहला ऑर्गन कौन सा काम करना शुरू करता है? हार्ट. कितने दिन बाद? 4 वीक्स. 1 महीने के बाद हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है और मरने के दिन तक बीट करता रहता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम सब में 46 होंगे because that's a mitosis cell division. Number of chromosomes or set of chromosome reduced only during meiosis cell division. Meios means to reduce and mitos means thread-like. यूटेरस 3 लेयर की बनी होती हैं. कौन कौन सी? इनसाइड टू आउटसाइड, एंडोमेट्रियम दैट इज इनर मोस्ट. उसके बाद मायोमेट्रियम दैट इज द मिडल मस्कुलर लेयर and perimetrium outer. सर एम्ब्रियो से फीटस बनने में कितने बाप रे बाप, कितना पढ़ोगे? आगे क्लास में कुछ नहीं पढ़ोगे. वैसे तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं में लग जाएंगे कई दिन. ठीक है, अभी आप इतना ही जानो. गेस्टेशन पीरियड इज 36 वीक एंड फिर तो मोरुला ब्लास्टुला. मोरुला तो बताओ नहीं, ब्लास्टुला जरूर बताऊंगा अभी. Uterus opens into vagina through cervix. Vagina act as birth canal, act as birth canal. External genitalia. Now mammary glands. इसका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन.
nourish the young ones. Generally, first milk produced after childbirth is known as colostrum. क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम. और कहा जाता है कि इसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, नहीं तो बच्चे को बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी एंड उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी. व्हाट इज द रीजन? बिल्कुल बिल्कुल सही होते हैं. बोलिए. चलो मैं बताता हूँ. ठीक है. बट यू आर राइट, इन राइट डायरेक्शन. ओके. कोलोस्ट्रम इज रिच इन antibody that protect infants from diseases. IgA, immunoglobulin, immunoglobulin, and it is also rich in protein content and minerals and vitamins. प्रोटीन कंटेंट रिच होने के कारण ग्रोथ के लिए जरूरी है और एंटीबॉडी प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस. बट एक समस्या है, आप चाहे तो बता दें हमें. व्हाट इज द रीजन? एंटीबॉडी बनी होती है किस चीज की? प्रोटीन की. और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कभी भी बिना डाइजेशन के नहीं होता. और अगर एंटीबॉडी डाइजेस्ट हो गया तो हमें बीमारी से नहीं बचाएगा. फिर क्या जरूरत है कोलोस्ट्रम देने की बच्चे को? बिना कोलोस्ट्रम भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब वो हमारे किसी काम का रहा ही नहीं, अगर डाइजेस्ट हो गया तो हमें बीमारी से नहीं बचाएगा. बोलिए. नहीं, डाइजेशन तो हो ही जाएगा. खाना खाएगा तो डाइजेशन तो होगा. डाइजेशन नहीं होगा तो खाना सड़ने लगेगा उसके पेट में. दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम. किसी बुक में मेंशन नहीं है, बट मे बी इनर लाइनिंग जो प्रोटीन के डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन को रोकती है वो बर्थ के बाद बनती है और उसे बनने में थोड़ा समय लग जाता है. इसीलिए अगर हमने पहले पिला दिया बच्चे को कोलोस्ट्रम तो दैट एंटीबॉडी विल बी एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और एक बार ब्लड में एंटर कर गया दे विल प्रोटेक्ट द चाइल्ड. ठीक है. इसलिए कहा जाता है कि अर्ली पहला मिल्क ही पिला देना चाहिए बच्चे को. हालांकि पहले डॉक्टर्स मना करते थे, घर के लोग भी मना करते थे, but now in research it becomes very useful for the child. Okay. और प्रोटीन कंटेंट फर्स्ट मिल्क में तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है. इवन इन एनिमल्स में भी. एनिमल्स के बच्चे तो चाहे बर्थ के बाद ही पीने लगते हैं दूध उनका, और देखते हैं बड़ी स्ट्रांग होते हैं. एनिमल से स्ट्रांग होते हैं? नहीं होते. ओके. Now, after external mammary glands provide milk to nourish the young ones. First milk produced after birth is called colostrum. It is rich in antibody, protein, minerals, etc. Hence, doctor advise. या सीधे लिखो hence it should be given to child. क्या करेगा? प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज
and helps in growth. Protect from disease and helps in growth. अब हमने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया क्या? 6 पेज हो गए, ये लिखना चाहिए। करो पेज बर्बाद हो जाएंगे। चलिए अब एक ही पेज में टॉपिक निकाल लेते हैं। नेक्स्ट वन इज mammary glands. The process is एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने पढ़ा ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 2-3 हार्मोन्स के नाम बताइए जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इवन मिल्क सिंथेसिस, मिल्क रिजेक्शन एंड चाइल्ड बर्थ। बोलिए, बुक खुली हुई है सामने, देखिए, देखने की चीज है जरूर। हार्मोन्स which helps in child birth, milk synthesis and milk ejection. Yes, prolactin, milk synthesis. और एक तो हमने बताई हुई तो है सारी। Progesterone is known as pregnancy hormone because it maintains pregnancy. ऑक्सीटोसिन, ये हमने लिखा भी रखा है, आप देखिए अगर एंडोक्राइनोलॉजी तो इट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ by contracting uterine muscle and also helpful in oxytocin, milk ejection. इसके तो मिसयूज भी हमने बताए थे। मिल्क सिंथेसिस, ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्शन। चलो मैं लिख ही देती हूँ। Milk ejection and child birth. What happens if egg is not? इसके बाद यही है क्या? नहीं, प्लेसेंटा है मेरे समझ से। What is placenta? Disc-like spherical structure which develops between the uterus walls and good. बिल्कुल सही। Anybody else? It's a disc-like structure which develops between the uterus and the zygote, and it provides the zygote with nutrients, oxygen, and removes the waste from the zygote. Okay. Disc-like structure formed by fusion of maternal and fetal tissue or uterine wall and fetal tissue called placenta, and it provides nourishment to the embryo from mother's blood. It also helps in removal of waste from the
fetal body to the mother body. It means न्यूट्रिएंट लेता है बच्चा माँ से, ऑक्सीजन भी लेता है और अपनी बॉडी के सारी वेस्ट मदर की बॉडी में ट्रांसफर भी करता है. इट मीन्स मदर्स की बॉडी की फंक्शंस बढ़ जाती हैं. दैट मे क्रिएट्स प्रॉब्लम्स बट इट नॉट हैपन्स जनरली. आपने देखा होगा एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ बच्चे की बेली बटन से एक ट्यूब जुड़ी होती है व्हाइट कलर की, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड. रियली प्लेसेंटा अटैच विथ अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा अटैच विथ बेली बटन विथ द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. इट कनेक्ट्स प्लेसेंटा एंड बेबी को कनेक्ट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. एंड नाउ इट इज अम्बिलिकल कॉर्ड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? Because good stem cells. What are stem cells? Unspecialized cell which can form any other type of cell in the body. Okay. Stem cells are unspecialized or undifferentiated cells from which in future different organs or any other tissue or cells can be regenerated. But suppose हमने अपना अम्बिलिकल कॉर्ड स्टोर करवा लिया अपनी लाइफ के लिए, पैसे देके, बड़े होने के बाद मुझे किसी ऑर्गन की ज़रूरत है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी क्या पता उतनी जल्दी तैयार हो सके ऑर्गन या नहीं. मैंने क्लोनिंग करा ली, पूरी ह्यूमन बीइंग बना ली, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है अच्छा लाभ है इसका हार्ट मुझे लगाते. इथिकली सही है? नहीं. इसीलिए पूरे वर्ल्ड में किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक ह्यूमन क्लोनिंग को परमिशन नहीं दी है. ह्यूमन क्लोनिंग इज बैन थ्रू आउट द वर्ल्ड. बट इट्स ए गुड टेक्निक. अभी केवल थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली हमने अभी अप्लाई नहीं किया है. बट इट इज सपोज दैट इन फ्यू इयर्स इट विल बी ऑन फ्लोर. संभव हो जाएगा तो हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन डोनेशन के अभाव में या ऑर्गन अवेलेबिलिटी के फेलियर में डेथ हो जाती है. इन दैट कंडीशन वी कैन प्रोटेक्ट देयर लाइफ. नहीं, स्टेम सेल से लेंगे, और स्टेम सेल हमारी अपनी सेल है तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है. अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या है, इट्स वेरी कॉस्टली इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमारी बॉडी उस बॉडी के सेल्स को एक्सेप्ट नहीं करती. देन वी यूज इम्यूनोसप्रेसेंट. इट मीन्स ऐसी दवा यूज करते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम को स्लो डाउन कर देती है. अगर इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन करेंगे तो देयर विल बी इंक्रीज्ड चांस ऑफ इन्फेक्शन और डिजीजेस. तो बीमारी का भी इलाज करेंगे, नर्वस सिस्टम को सुलाने के लिए भी दवा का इस्तेमाल करेंगे, काफ़ी महंगी हो जाती है. लेकिन जब हम स्टेम सेल से ग्रो करेंगे दैट विल बी आवर सेल्स, और उसे हमारी बॉडी बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट करेगी. तो पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन जो कॉस्ट होती है दैट विल बी रिड्यूस्ड ग्रेटली. अच्छा आइडिया है, लेकिन वैसे ही कोई मर नहीं रहा. कितनी संख्या बढ़ेगी? पॉपुलेशन इज ए ग्रेट, but the first priority is to protect the life of human beings. Each and every life is precious because that is God gift, and we can't ignore or loss or bear the loss of life or God gift. इसलिए हर हाल में हमें हर लाइफ को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और कम से कम ऐसे लाइफ स्टाइल डेवलप करने चाहिए ताकि बीमारियां कम हो और उनकी वजह से किसी को जान से हाथ ना धोना पड़े. एवरी बॉडी कैन सर्वाइव, लिव हैप्पीली एंड लॉन्गर. लंबी आयु होनी चाहिए ताकि कम से कम हम अपनी जो भी एबिलिटी है अपने सोसाइटी और कंट्री और वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर पाएं.
एंड इसी के लिए मेडिकल प्रोफेशन को इतना बढ़ावा दिया गया, और आज मेडिकल प्रोफेशन इज सो डेवलप दैट इट बिकम्स नेक्स्ट टू गॉड. भगवान के बाद अगर कोई है तो डॉक्टर्स हैं. फर्स्ट हैंड which brought us on this planet was the hand of a doctor. वही नहीं, जब भी हम बीमार होते हैं हमें डर होता है कि कुछ हो जाएगा, डॉक्टर्स कम्स इन फ्रंट, कहते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, हमें ना दवाएं लिखते हैं, हम दवा खाते हैं और ठीक हो जाते हैं पक्का. बट एक समस्या है, इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए हमें ये दवा नहीं यूज़ करनी चाहिए. नहीं करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी अराउंड 30 ईयर्स. अगर यूज़ करते हैं तो चाहे जितने बेनिफिट नुकसान हो, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ अराउंड 60 ईयर. कौन के जल्दी में मरना चाहेगा? सबको जीने का हक है, सब 60 साल तक जिए, 100 साल तक जिए. तो मेडिसिन नहीं डिक्रीज होती तो हम यूज ही नहीं करते ना. नहीं, हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है या दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक तो दी ही इसलिए जाती है कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए. पहले कंडीशंस थी कि एक या दो ही एंटीबायोटिक थे हमारे पास, अगर उन दो ने असर करना बंद कर दिया तो फिर कोई दवा हम पे असर नहीं करती. बट अब तो अराउंड 2000 एंटीबायोटिक्स इंडिया में प्रिपेयर होती है, और ना केवल इंडिया में बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है. ऑल कंट्री, चाइना, अमेरिका, यूरोप, सबको हम एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारी कई कंपनियां तो अपना 50% से ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं, बिकॉज आवर प्रोडक्शन इज कॉस्ट एफिशिएंट. सर जो ट्यूब होती है इनफैक्ट में, तो वो इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, तो वो सर वो कहाँ जाते हैं? मतलब बर्थ के बाद तो जनरली अभी तक हमारे यहाँ सिस्टम था कि उसे कट कर दिया जाता था और फेंक दिया जाता था, डिस्ट्रॉयड. बट अब कुछ हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी आ गई है जिसे अगर आप पे करें तो आपके लाइफ टाइम के लिए उसको प्रिजर्व करके रखेंगे. फिर जब आप सर में चाहिए जब आपको ज़रूरत होगी तो ये उसे प्रोवाइड करेंगे आपको. तो उससे फिर हमारी बॉडी में ज्वाइन नहीं, ज्वाइन नहीं करेंगे, उससे फिर एक स्पेशल टेक्निक होगी टिश्यू कल्चर का जैसा, जिससे उसमें का वो सेल स्टेम सेल निकालेंगे और उससे हम नया ऑर्गेन ग्रो करेंगे या टिश्यू, और फिर उस ऑर्गेन को ट्रांसप्लांट करेंगे. इसमें अभी समय लगेगा, बट ऑलवेज होप फॉर बेटर. अच्छे के लिए उम्मीद करो, हमेशा उम्मीद पूरी होती है. अपने लिए किया गया उम्मीद भले ना पूरा हो, दूसरे के लिए की गई उम्मीद हमेशा पूरी होती है. आप ही लोगों में से कोई डॉक्टर साइंटिस्ट बनेंगे, हो सकता है कि आप ही ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दें, मैं भी ना. अच्छा, एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड मेडिकल से फील्ड? गुड, बहुत सारे. गुड, होना चाहिए. अभी वैसे भी इंडिया में डॉक्टर्स की इतनी कमी है कि आने वाले 50-100 सालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी नहीं होगी. जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वही पूरी नहीं होगी, अगर सीटें डबल कर दी जाएं तो भी. इसलिए यहाँ कोई रोज़गार की प्रॉब्लम नहीं है, जितने आएंगे सब फिट होते जाएंगे. रेस्पेक्ट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और अपने आप को सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि हमने किसी के लिए कुछ किया. और प्लेसेंटा कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग. डेस्क like a structure formed from maternal and tissue
embryo get nourishment from mother's body, not body, through blood. मदर के ब्लड से लेते हैं. एंड वन थिंग, सोचो, एक अपने यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि पुरानी कहावत क्या, नॉर्मल सी बात है, छोड़ो कहावत को. जनरली हम अपनी माँ के ब्लड पे फीड करते हैं ना, करते हैं. और जिसके खून से हम बड़े हुए हैं, न्यूट्रिएंट लेके, मतलब उसके हिस्से का खाना हमने खाया है, हमें उसकी बात माननी चाहिए कि नहीं? अगर नहीं मानते हैं तो हमसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं है. और चाहे उनकी सारी बातें मान ले तो भी हम उसे पूरा तो नहीं कर सकते, बट थोड़ी खुशी देना तो बनता है कि नहीं? बनता है. मानेंगे? सब मानते हैं अपने पेरेंट्स की बात? अगर नहीं भी मानते होगे तो आज से मानना शुरू कर देना. Nourishment from mother's body and also for waste to the mother's blood. Next one is, I think, implantation है क्या? चलिए, कोई नहीं. अब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो आता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट अटैच्ड विथ, कहाँ अटैच होता है? इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. अभी तो बताया था. इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज एंडोमेट्रियम. और एक राउंड सी स्ट्रक्चर बनती है जिसके आउटर लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं that enters into the uterine wall till they make contact with blood vessels. जब तक ब्लड से इनका कांटेक्ट ना हो जाए तब तक ये ग्रो करती हैं. एंड देन गेट फ्यूज विद मैटरनल टिश्यू. दोनों आगे आती हैं, आपस में कंबाइंड हो जाती हैं, एंड दैट फॉर्म्स ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज प्लेसेंटा. एंड दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर provide nourishment till the birth. कुछ भी नहीं आया समझ में? इसका मतलब मैं ही फेल हो गया. चलो अभी बताता हूँ. मैं सोच रहा था ये कल बताऊंगा, लेकिन ओके. दिस स्टेज, एक सेल जाइगोट, जाइगोट डिवाइड्स to forms 2 divide to 4, 4 to 8, 8 to 16 cell stage जो बनती है, that is called morula, because its shape is mulberry like. mulberry like होता है इसलिए इसको बोलते हैं morula. and morula further grow into blastula, that is called blastocyst. blastocyst spherical, and at one side it have a group of cells that's known as inner cell mass. क्या बोलते हैं इसको? inner cell mass. और outer line that is trophoblast. और जो अंदर की खाली जगह है, कैविटी, that is known as ब्लास्टोसिल. जब ये यहां पर आता है अटैच होता है, यही ब्लास्टोसिल.
सिस्ट या ब्लास्टुला स्टेज में ही मैटरनल या यूटेराइन वॉल के साथ कनेक्ट होती है. दैट्स वाई द प्रोसेस ऑफ कनेक्शन इज नोन एज इम्प्लांटेशन. इम्प्लांट होता है, ग्रो होता है. और इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं. ठीक है. और यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यूटेरस की वॉल के अंदर जाती है. और जब यूटेरस के अंदर वॉल के अंदर जाती है तो दे मेक कांटेक्ट विद ब्लड, मैटरनल ब्लड. और जब दोनों मदर की टिश्यू, सपोज ये मदर का टिश्यू है और ये बच्चे का टिश्यू है, ये जाता है ब्लड की खोज में अंदर. जब अंदर जाएंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे. और इसी के कनेक्टेड भाग को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा. इसका सरफेस एरिया अधिक होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके किसको ट्रांसफर करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को. एंड देन अम्बिलिकल कॉर्ड ट्रांसफर टू द एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो बेचारा बड़ी तेजी से ग्रो करता है. एट द टाइम ऑफ बर्थ 50 सेंटीमीटर. उसके बाद 1 साल तक कितना ग्रो करेगा, बड़ी तेजी से ग्रो करेगा. छोटा बच्चा बड़ी तेजी से बढ़ता है ना, हर महीने बढ़ जाता है थोड़ा. कितना बढ़ता है, 2 सेंटीमीटर हर महीने. तो 1 साल में 50 से ग्रो करके 74 हो जाता है. इट्स एन ऑन एन एवरेज डाटा, यानी कि हर बच्चा उतना ही बढ़ेगा या हर बच्चा 50 सेंटीमीटर का ही होगा. हो सकता है कोई 50 की जगह 52-53 सेंटीमीटर, 52-53 सेंटीमीटर हो जाए. हो सकता है कोई 45 हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द हेरिडिटी. माँ बाप बच्चे होंगे तो बच्चा बड़ा होगा, माँ बाप छोटे होंगे तो बच्चा छोटा होगा, बिकॉज इट्स एन जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस. और उसके ऊपर भी नॉरिशमेंट पर भी डिपेंड करेगा. अगर नॉरिशमेंट अच्छी मिली तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, नॉरिशमेंट नहीं मिली तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी. और ऐसे भी इंडिया में क्या सिस्ट कहाँ देखा आपने, सिस्ट हमने बोला वो सिस्ट, हमने ब्लास्टोसिस्ट बोला. सिस्ट रियल में होता है, वो इन्फेक्शियस स्टेज हो जाती है जब हम जाते हैं कोई डिजीज पढ़ते हैं. यहाँ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ये है. ये स्टेज देख रहे हैं ना, स्फेरिकल, एक्सटर्नली सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ सेल, एंड एट वन एंड there is a mass of undifferentiated cells that's known as inner cell mass. This inner cell mass in further development forms 3 layer of cells that is known as germ layer. और इसी 3 लेयर से हमारी पूरी बॉडी बनती है. जैसे हमारा दांत सबसे ज्यादा दिखता है ना सबका, हमारा मतलब मेरा नहीं, सबका. हंसते हैं तो भी, गुस्सा करते हैं तो भी, खाते हैं तो भी दांत ही दिखता है. ये दांत किस लेयर से बनता है, आउटर, मिडल, इनर. एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है. ठीक है. वैसे ही हार्ट मेसोडर्मल होती है. सब चीज की अपनी अपनी ओरिजिन होती है. कौन किस पार्ट से बनेगा ये आप इनर सेल मास से हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर. यस, हमारी पूरी बॉडी जो आप दिखती है ये इनर सेल मास की बनी हुई. ओके. तो अब ये इम्प्लांटेशन क्लियर हुआ. लिखेंगे कल, क्योंकि आप लोगों को तो अभी फोटो स्टेट में भी समय लग जाएगा ना. तो और कोई क्वेरीज तो नहीं है. ओके. बस इतना ही सिलेबस है ना आप लोगों का. तो अब हेरेडिटी भी आ रहा है. मैं तो सोच रहा था चैप्टर लास्ट है. नहीं मतलब हाफ ईयरली में 3 चैप्टर ही मैक्सिमम आ रहे हैं. आप में हेरेडिटी पूरी आ रही है. अभी मैडम ने कहा है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कई बार टीचर बच्चों को सिंसियरिटी के लिए कह देते हैं केवल सिलेबस आगे बढ़ा रहा है. बट अगर होता भी है, देख लीजिए, क्लास से ज़्यादा नहीं.
ओके, हमारे सर ज़ायगोट से एम्ब्रियो बने होते हैं और एम्ब्रियो वैसे भी चलो, इट्स योर होमवर्क, घर से पढ़ के आना, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ के आना घर से। अगर पढ़ के आ गए तो बड़ी अच्छी बात है, बोनस है, नहीं आए तो मैं तो बताऊंगा। इसी में आप लोगों ने ट्विंस देखा है। अगर पहला डिवीजन होता है, जाइगोट बनता है ना, एक हार्मोन होता है, जो हार्मोन अगर अधिक हो जाए तो एक से ज्यादा एग एक बार में रिलीज होती है। अगर एक से ज्यादा एग रिलीज हो गया, नॉर्मली एक से ज्यादा होता है, दो होता है, दो से ज्यादा बहुत कम होता है, रेयरेस्ट, दैट इज रेयरेस्ट। दो रिलीज हो गए तो क्या होगा, दो नॉर्मल जाइगोट बनेंगे, दो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ होगी, दैट विल बी सिमिलर टू नॉर्मल सिबलिंग्स। नॉर्मल भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन जैसे होंगे, दो नॉर्मल चाइल्ड जैसे, मे बी सिमिलर, मे नॉट बी सिमिलर। बट पहले एक केस और आता है, कॉमन है, जो एक निकला, एक जाइगोट बना, बट जाइगोट डिवाइड्स एंड गेट्स सेपरेटेड। नॉर्मली डिवाइड तो होता है हर हाल में, बट सेल्स रिमेन्स अटैच्ड विथ ईच अदर। लेकिन यहाँ क्या होता है, पहले डिवीजन के बाद सेल गेट सेपरेटेड। अगर सेपरेट हो गया तो दो एम्ब्रियो बनेंगे, दो चाइल्ड बर्थ होगी, और इन दोनों, चूंकि एक ही एग था और एक ही मेल गैमेट था, इसलिए इनका जीन 100% सिमिलर है। और जीन सिमिलर होगा तो क्या होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। इनका नाम है आइडेंटिकल ट्विंस। इनमें डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल काम होता है, सबके बस का नहीं। कुछ पार्टिकुलर आदतों की वजह से कहीं पेरेंट्स पहचान ले तो पहचान ले, अदरवाइज आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल। सर वो डिवाइड क्यों होते हैं ज़ायगोट? अननोन रीजन, अभी तक किसी को नहीं पता। वही तो बताया, जब दो अलग अलग एग निकले तो अनआइडेंटिकल होंगे, लेकिन एक ही एग निकला, एक ही जाइगोट बना, लेकिन जाइगोट किसी कारण से गेट सेपरेटेड into two, that will be called identical। एक एग्जाम्पल हमने भी देखा था, नाम तो मैंने सुना, observed it I think 6 to 8 years ago। दो बहनें थी, मैथ टीचर ने मेरे आगे दोनों को खड़े कर दिए, he was the class teacher, और उन्होंने मुझे नाम बता दिए दोनों को, बोला सर 2 मिनट बाद आए, सर पहचानो किसको, हमने क्या नाम बताया। I was but माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में मुझे एक के चिन्ह के पास मोल मार्क दिखा था, फिर मैंने दोबारा उनसे नाम पूछा, डिफरेंशिएट किया। तो ऐसा नहीं, अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो बता सकते हैं। कई बार बिहेव थोड़ा सा अंतर होता है, कोई ज्यादा बोलने वाला होता है, कोई कम बोलने वाला होता है, बट दे आर जनरली वेरी सिमिलर, नॉट वेरी सिमिलर, आइडेंटिकल टू ईच। एक ट्विंस आइडेंटिकल और है हमारे यहाँ, बट नॉट इन माय फैमिली और रिलेशन, बट इन स्कूल। बट इनमें है कि थोड़ा सा एक का वजन थोड़ा अधिक है, दूसरे का वजन थोड़ा कम है। अगर वजन पे ध्यान नहीं दिया तो फिर दोनों को पहचानना मुश्किल। एक का नाम प्रफुल्ल है, प्रफुल्ल, और एक का नाम बायोलॉजी स्टूडेंट, तो उसका नाम मुझे याद। So it's miracle. Biology is a science of exceptions. बायोलॉजी में जितने एक्सेप्शंस है, बिकॉज इट्स ए लाइफ साइंस, और लाइफ में इतनी वेरिएशंस है वी कांट इमेजिन। और जब तक हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते
तब तक कुछ कह भी नहीं सकते। आप भी अपने आसपास में वेरिएशंस ऑब्जर्व करिए। सर तो जो ट्विंस होते हैं तो कभी बार उनके हाथ ज्वाइन रहते हैं। That is Siamese twins. Sometimes this is zygote. Division start either from any side. Suppose started from upward, but in between remains undivided. Lower side also divided. In that conditions, middle part will remains attached with each other. Sometimes division completed from one side, but remains attached at one side. तो इनका सर जुड़ा हुआ रह जाता है। But in most cases, they can't survive. Survival chance is very very less. इसमें एक सबसे ज्यादा सर्वाइवल 60 years तक हुआ है। थाईलैंड के 2 ब्रदर्स थे। They survived for around 60 years or more than 60 years. दोनों की डेथ एक ही दिन हुई थी। एक को हार्ट अटैक आया था, दूसरे का ब्लड रुक गया था, दूसरे की बॉडी साइड से जुड़े हुए थे। एक को हार्ट अटैक आया था, दूसरे का ब्लड बॉडी में सर्कुलेट नहीं पड़ता तो वो भी मर गया। काफी दिन हो गए, बहुत पुरानी बात है। पढ़ा था ये। हाँ, पढ़ा होगा आपने। आई थे या चाइल्ड दे तो सर जिनके हाथ जुड़े रहते हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते। नहीं, हाथ जुड़े आजकल नहीं, ये तब की बात है जब हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी। टुडे वी हैव टेक्निक टू सेपरेट, और इसमें कभी कभी सक्सेस नहीं मिलती। जैसे 2 sisters फ्रॉम ईरान अटैच्ड विथ हेड ड्यूरिंग सेपरेशन ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, they died. But in many cases it was successful, operation was successful and they get their normal life. किसके साथ क्या होना है, टेक्निक ने काफी आसान बना दिया है। एंड टेक्निक्स में हेल्प। कई बार होता है कि केवल आंखें डिवाइड हो जाती हैं, आंख बनाने वाली सेल डिवाइड होती है, वो भी बाद में, पहले दूसरे डिवीजन के बाद नहीं। They have more than 1 or 2 eyes. कई बार होती है कि हाथ वाले डिवाइड हो जाते हैं, more than 2 hands. हेड डिवाइड हुआ, बाकी पूरी बॉडी अरेंज्ड है, 2 heads. They known as monsters. इनके लिए टर्म यूज किया जाता है। For that conditions, biology use the term monsters and their survival chances. नहीं, हैंड्स ज्वाइंट से तो उसे तो हम अलग कर सकते हैं, बट अब सर 2 हो गए, बाकी पूरी बॉडी है खत्म, कैसे सरवाइव करेंगे? बोलते हैं ना राक्षस हो गया ये, काफी सारे। दिमाग बिल्कुल घबराने, अभी तक वैसा चांस आया नहीं है, दोनों सोचे।